اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب ھب لی حکما والحقنی بالصالحین آمین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین۔ اچھا جی، ورک شیٹ ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے اور کل میں نے آپ لوگوں کے اسائن کر دیے تھے، ٹھیک ہے جی۔ 14 تک ہم نے کر لیا تھا، 15 سے لے کے پھر آگے 25 تک جو ہے نا یہ میں نے آپ لوگوں کو اسائن کر دیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اور جی نمبر 15 کس کا ہے سینٹینس؟ 15 جو ہے لوگ ان میں سے کسی کا ہے؟ میم میرا چلیں پھر میم ابھی آئی ہوں، بالکل ابھی جیسے ہی آپ نے بولا 16 کون کس کا ہے؟ اچھا چلیں پھر 16 کس کا تھا؟ میرا اپنا تھا۔ نہیں، میں نے 15 کا پوچھا ہے کہ 15 کس کا تھا۔ آپ نے کہا میرا ہے، 16 پوچھا آپ نے کہا میرا ہے۔ نہ 16 میرا ہے۔ بیٹے میں نے 15 کا پوچھا تھا، 15 جی کس کا ہے؟ یار ہے تو نہیں، 16 میرا ہے۔ سوال تو ہی ہوگا۔ ایک منٹ آئے، آپ بھی آپ رکیں ذرا۔ حفصہ کا ہے، حفصہ کہاں ہے جی؟ حفصہ آپ کا تھا نمبر 15۔ یس میم ہاں جی تیار ہے؟ ایک سیکنڈ۔ ایٹین میم تھا جی۔ اس میں ذہبہ بتائیے منصوب ہے اور صحابہ کیا ہے؟ اور صحابہ کیا ہے؟ زیدن منصوب ہے ہوں اور ذہبہ جو ہے وہ مفعول معہ ہے۔ ذہبہ مفعول معہ، ذہبہ کیا ہے بیٹے؟ ذرا اس کا پہلے ترجمہ کریں، زیدن ہے وہ منصوب ہے ترجمہ کریں، اور مفعول معہ ہے۔ ترجمہ کریں۔ سب سے پہلے ترجمہ کرنا ہے، بعد میں پھر مجھے کچھ بتائیے گا۔ اگر آپ نے ٹائم لینا ہے تو ٹائم لینے، اس طرح ٹائم ویسٹ نہیں کریں۔ بکر اور زرد گئے۔ حفصہ میں آپ سے بعد میں پوچھوں گی۔ ہاں جی نمبر 18 ہے ام ایمان جی، ورتل القرآن ترتیلا۔ سب سے پہلے ترجمہ کرنا ہے ام ایمان۔ تھوڑا ٹائم مل سکتا ہے مجھے؟ بیٹے آپ لوگوں کو ایک ایک سینٹینس میں نے دیا تھا، اب وہ کس لیے میں نے دیا تھا کہ یہاں پہ ٹائم ویسٹ نہ ہو، ایک سینٹینس آپ نے پریپیئر کرنا تھا صرف۔ جی میم تھوڑا ٹائم۔ تو پھر اس میں کیا اس میں مشکل ہے؟ ہاں جی کس کا تیار ہے؟ جو لوگ آئے ہوئے ان میں سے پریپیئر کس کا ہے؟ میرا تیار ہے۔ چلیں پھر آپ بتائیں، آپ کا کون سا والا تھا جی؟ 22 22 تھا نا۔ ہوں انتظرتک شہرن، میں نے تمہارا انتظار کیا، میں نے تمہارا 1 مہینہ انتظار کیا، ٹھیک ہے۔ اور جو انتظرتک اور اس کا ہو جائے یہ گا، یہ ظرف جمع ہو جائے گا، یہ شہرن جو ہے یعنی مفعول کون سا بنے گا؟ یہ وہ ظرف کو ہم مفعول فی ہی کہتے ہاں ہیں، جی ٹھیک مفعول، جی ہے؟ مفعول، یس مفعول، یس۔ یہ فی ہی ہے کیونکہ آپ کو ٹائم وہ بتا رہا ہے کہ کب تک اس نے وہ انتظار کیا، ٹھیک ہے؟ جی جی وقت کا وقت، سوری فعل کا وقت بتا رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ شال وشال آپ کا کون سا تھا بیٹے؟ میم 19 تھا۔ 19 ہاں جی، انزل من السماء ماء۔ میم اسے مان جو ہے وہ اس میں منصوب ہے اور مفعول بھی میں آتا ہے۔ مفعول بھی میں آتا ہے، ٹھیک ہے ترجمہ کریں اس کا۔ ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی۔ ہم نے انزلہ ہم نے نازل کیا،
انزل نزل ينزل، ٹھیک ہے. یہ انزل آپ کے پاس جو ہے یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. ڈکشنری میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہوئی ہے، اس کو یوز کرنا شروع کریں. نون، زا اور لام. ان کو کیا بولنا، کیا مادہ موجود نہیں ہے. ہاں جی، انزلہ جو ہے وہ آپ کے پاس ہے، اس کا مادہ یہی ہے، لیکن آپ کے پاس اس کا باب تبدیل ہو رہا ہے. دوسری کھول لیتے ہیں ڈکشنری. آئین کا یہ آپ کے پاس آ گیا جی، ٹھیک ہے جی. نازلہ، اور یہ آپ کے پاس آ گیا انزل الشیء، اتارنا. ٹھیک ہے، نزلہ ہوتا ہے اترنا اور انزلہ ہوتا ہے اتارنا. ٹھیک ہے، تو انزلہ پہلا آپ کے پاس سیگا یہ انزلہ، اس نے اتارا من السماء، آسمان سے، ماء پانی. جی منال، منال آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا. منال میم یس جی بولیے. آپ میم میرا وہ غائب نہ 16 ہوا کریں ادھر ادھر کریں. جی منال 16. آپ لوگوں کا بیٹے اگر آج وہ کچھ میم پرابلم ہوا ہو ہے رہا میرا ہے پریپیئر. تو پھر بتائیے. اگر کوئی مسئلے مسائل ہو رہے ہیں نا تو پھر آپ مجھے بتا دیا کریں شروع میں کہ ہم مائک نہیں انمیوٹ کر سکتے، یہ لسنر کے طور پہ آ جائے کریں، ٹھیک ہے نا. آپ اپنے ساتھ باقی لوگوں کا بھی ٹائم ویسٹ کر رہے ہو. جی 16 میم مجھے آپ کی آواز نہیں آئی تھی اس لیے وہ ہو رہا تھا. چلیں. اس کے اندر لیلم و نہارا وہ مفعول فی ہے کیونکہ ٹائم وغیرہ بتا رہا ہے، اور اس کا ترجمہ ہوگا دعوتا، میں نے دعوت دی قومی داؤتو. دعوتوں میں نے دعوت دی قومی اپنی قوم کو، لیلم و نہارا دن اور رات. ایک اور بھی ہے اس میں مفعول. مفعول اس کے اندر ایک اور ہے. ہوں قومی قوم جو ہے میری قوم، ٹھیک ہے نا. تو یہ میری قوم قوم بھی آپ کے پاس، یہ پورا جو ہے یہ بھی بن کے آپ کے پاس کیا آ رہا ہے، کون سا مفعول بن رہا بھی ہے، بھی بن رہا ہے. اور لیلن و نہارا جو ہے وہ فیہی مفعول بن رہے ہیں. جی حفصہ. میم مجھے ہو گیا بتاؤں. ہوں ترجمہ ذہبا بتانا تھا آپ کو. ذہبا بکم، اچھا. زیدن اس میں منصوب ہے اور یہ مفعول معہ ہے، اور اس کا ترجمہ ہوگا بکر زید کے ساتھ گیا. ہوں بکر کے ساتھ زید گیا، ٹھیک ہے جی، کیونکہ وا کے بعد زید آ رہا ہے. صحیح ہے جی. اچھا جی، اس کے بعد آ گیا، ہاں جی اب جی کون آئے گا. 19 بھی ہو گیا ہے، 18 رہ گیا ہے، 17 میں نے کسی کو دیا نہیں تھا، اس میں تھوڑا سا کچھ ڈفرینٹ چیز تھی اس وجہ سے. اور باقی لوگ جی کس کا تیار ہے. جی رحیلہ جی آپ کا کون سا تھا. جی میرا 23 تھا میرے خیال میں. کانا ابراہیم نبیًا. کانا ابراہیم نبیًا، تھے ابراہیم نبی. تو میم یہ کانا کی خبر ہے اس لیے یہ منصوب ہے نبیًا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. یہ کانا کی خبر ہے، کانا کا اسم آپ کے پاس آ گیا جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، اور خبر جو ہے وہ منصوب ہوتی ہے. بالکل صحیح. کانا ابراہیم نبیًا، ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، یا ہم یہ بھی کر سکتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، کیونکہ جیسے انہوں نے بتایا تھا کہ یونیورسل ٹروتھ جو ہے اس کے لیے یہ اس میں کوئی چینج نہیں آئے گی ترجمے میں. جیسے تھا نا کان اللہ
गफूरन, बिल्कुल सही। हाँ जी, आगे कौन रेडी है जी? जी, नंबर 25 किसका था? गौसिया, हाँ जी, आपका कौन सा था? मैम 21। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ली जी, ला शरीक लहू। मैम ये ला जो है ये ला नफी जिन्स है, जिसकी वजह से ये शरीका मंसूब हो गया। लाए नफी जिन्स है। शरीक तो आपके पास, अच्छा हाँ ठीक है, शरीका नहीं है कोई शरीक। लहू, उसका, बिल्कुल सही। यानी लाए नफी जिन्स की क्या है जी? जिन्स का इसम। इसम। अच्छा जी, अब यहाँ पे रह गया 18, 20। 20 किसका था? अच्छा ये 20 जी में देखने को तो यास्मीन जी का था। यास्मीन जी अभी तक आई नहीं है। और 18 उम्मे ईमान का है जी। उम्मे ईमान, मैम मुझे पता नहीं क्यों मफूल समझ में नहीं आ रहा, ट्रांसलेशन आती है। ट्रांसलेशन करें। कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ो। अब जरा देखें, रत्तिल, रूट वर्ड्स क्या है इसमें? रोताला। तरतीला में रूट वर्ड क्या है? तारालम। रात आलाम है उसमें भी। जी ठीक है, तो जो सेम रूट वर्ड के साथ होता है वो क्या होता है? वो तो सब पहचानना सबसे आसान होता है। सही, हाँ सॉरी। हम्म तो फिर ये कौन सा ये बना? वो है मफूल मुतलक। मुतलक, ये तो सबसे इजी वन है। ठीक है, रत्तिल। अच्छा अब ये, मैं जी जी पूछिए। समझ में आया। आ ओके गया समझ में? अच्छा, अब थैंक ये यू। देखें, यहाँ पे आपको बहुत सी जो दिए गए हैं ना, इस इसम कह रही हूँ, फेल दिए गए हैं, वो आपको दिए गए हैं क्या उसे कहते हैं, मजीद फी ही है। ठीक है, जैसे कल्लमल, कल्लमा, ये भी मजीद फी ही है। उसके बाद आपके पास जो है वो वद्दात, मजीद फी ही है। अच्छा जी, उसके बाद ये रत्तिल जो है ये मजीद फी है। ठीक है, या अरहम राहिमीन को जो हम तर्जमा कर रहे थे, ए अरहम, सबसे ज्यादा रहम करने वाले, राहिमीन, रहम करने वालों में से, रहम करने वालों में से सबसे ज्यादा रहम करने वाले। ठीक है, तो ये आपका जो है वो दो दुआओं में भी इस्तेमाल होता है, अरहम और राहिमीन। अच्छा, इसी तरह आपके पास अनजला जो है, ये भी आपका जो है वो मजीद फी ही में से है। ठीक है ना, नाजला का मतलब होता है उतरना, और अनजला का मतलब होता है उतारना। ये दोनों का माना जो है वो डिफरेंट हो जाता है जब आपके पास मजीद सुलासी, मजीद मुजर्रद, उसको हम जब मजीद फीही में लेके जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, और इसके भी आपके पास रूट वर्ड जो है, जैसे अनजला है, रूट वर्ड आपके पास वही रहेंगे, नून, जा और लाम। ठीक है, अलिफ जो है ना वो एक्स्ट्रा इसमें लगा हुआ है। जो मजीद फीही होते हैं उनमें एक्स्ट्रा जो है वो कुछ ना कुछ लगा हुआ होता है, जैसे रत्तिल में ता दो दफा है आपके पास। इसी तरह जो कल्लमा है, उसमें लाम दो दफा है, कल्लमा। ठीक है ना, लेकिन उसके रूट वर्ड काफ, लाम और मीम ही काउंट होंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास रह गया कौन सा वाला जी? एक तो 17 वाला, वो मैंने खुद नहीं दिया था जान के। 18 वाला भी हो गया। 19, 20 वाला जो है वो यास्मीन जी को था। यास्मीन जी अभी तक आई नहीं है। आप में से अगर कोई करना चाहे तो इसको देख सकता है। और उसके बाद बाकी बचा जी नंबर 24 किसका था? 24 था किसी का, किसी को नहीं था। 24 फायजा का था। फायजा भी अभी तक नहीं आई है। और 25, हाँ जी, 24 और 25 अगर कोई करना चाहे तो वॉलंटियरली। ट्वेंटी जी फोर आयत 24। जी। और आयत आप कौन सा करेंगी? जी मैम यही लास्ट बच गया ना 25। नहीं, 25 भी रहते हैं। 25 एंड जी मैम 25 थी। देख लें उसको। और एक आ गया जी ऊपर से आपका, अय्युकुम अहसनु अमला, ये वाला। जी वॉसिया, आपने हैंड रेस किया। जी जी। अच्छा मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे मेरा वाला था 21, दिखाइएगा मैम जरा। हम्म जैसे वो था ला जी, शरीका लहू, अब हमको क्या लहू को भी एक्सप्लेन करना होगा? क्योंकि वहां पर जो ये हुआ है, ये जमीर हमारी उसकी है, मंसूब जमीर है।
तो वो तो लाम हरफ जर की वजह से है। अच्छा ठीक है। लहू है ना, हाँ लाम हाँ हरफ ठीक जर आ मतलब रहा है ना, तो उसके बाद तो बस हमें फिर उसके इसके बाद बारे में नहीं मंसूब पता। नहीं, उसके बाद मजरूर जमीर आएगी। तो वो तो उसकी वजह से है ना, उसका लाम लाए नफी जिन से तो कोई ताल्लुक नहीं है। जी जी, मतलब हमें उसको एक्सप्लेन नहीं करना, ठीक है। वो है मंसूब है भी नहीं, वो मजरूर है। हाँ मजरूर है, सही कह रही तो हैं। हम तो मंसूबात के बारे में पढ़ रहे हैं ना। ठीक ठीक। हाँ जी, राहिला जी, हो गया, करेंगी। जी मैम। हम्म दरबतुहु दरबन। मैंने मारा उसे। मारना। जैसे हम्म मतलब मारना, ये। या आप इससे ये भी तर्जमा कर सकते हैं, मैंने उसको बहुत मारा, या मैंने उसको वाकई ही मारा, या मैंने उसको, आमतौर पे कुरान में जो इसका तर्जमा किया जाता है, क्योंकि दरबन जो है वो आपके पास है इसका मसदर है, तो मसदर के माना में उसका मीनिंग कर दिया जाता है। तो जरबतुहु, मैंने मारा उसे, जरबन, मारना या बहुत मारना। तो मैम हाँ जी, ये भी, ये उसकी मुतलक कैसी है, ये मंसूब है। जी, मफूल मुतलक है। इसके अलावा एक और भी यहाँ पे भी मंसूब इसम है इस जुमले में। इस जुमले में एक और मंसूब इसम भी है। दरबतुहु। जरबतु तो हम आपके पास फेल है ना। जी जी, ये हु जो हम्म, है। हू जमीर, उससे, ओ जी। मैंने मारा उसे, कौन सा है मफूल ये? ये दरबतुहु, ये मैम होगा ना हुआ। नहीं नहीं, मफूल कौन सा है ये? 5 मफूल जो हमने पढ़े हैं उनमें से कौन सा है ये? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। जरबन तो आ गया ना मफूल मुतलक, ये कौन सा वाला मफूल है? ये भी ही, या जी, भी ही। मफूल बिही, जो बिल्कुल फर्स्ट वन जो मफूल है ये वो है, जो मफूल हम इस्तेमाल करते हैं, वो मफूल जिस पे काम का असर होता है, तो ये मफूल बिही है, और वो मफूल मुतलक आ गया। सही। जी गौसिया, आपने हैंड रेस किया। जी मैम 25 के लिए। 25 जो है वो आयत में करना है। अच्छा ठीक। जी मैम, मैं कर। 1 मिनट, यास्मीन आई है। जी यास्मीन, यास्मीन आपका कौन सा वाला था? यास्मीन, यास्मीन, आप हैं? चले आयत स्टार्ट करें। जी मैम। अकल हम्म, वालिदु वल अबना, वालिद और बेटों ने खाना खाया। तो इसमें जो है वो वल अबना जो है वो हमारे पास है, मफूल है, और वो मफूल कौन सा? भी। बिही, जी। वल अबना कैसे बहा बिही? वल अबना उन्होंने मैम खाना खाया मफूल है है। दोनों ने, तो वो मफूल कैसे हो गया वो? आपने तर्जुमा क्या किया है, वालिद और बेटों ने खाना खाया। जी। हाँ, तो फिर यहाँ पे तो बेटे तो फाइल है, वो मफूल कैसे हो गए? जी वल अबना। मैम ये वल अबना गैर मुनसरिफ तो नहीं? नहीं, तो गैर मुंसरिफ भी होता तो यहाँ पे आपके पास इसके ऊपर जबर अगर आ रही है, तो ये या तो मंसूब होगा या मजरूर होगा। जी हम्म, मैम, वल अबना जो है वो तो है ना मैं मफूल है, बट वो वाला है कैसे इसमें। मफूल है? मैं यही तो पूछ रही हूँ ना, आप तर्जमा मैम क्या कर रहे हो? मंसूब। अच्छा। मंसूब मैम तो मे वो भी तो मैं नजर आ रहा है मंसूब है। तर्जुमा गलत कर हाँ, तो दी। मंसूब क्यों है? जी मुझे नहीं पता चल रहा। जी गौसिया, गौसिया। जी जी। हम्म, करें 25 वाला। मैं भी यही जवाब देती जो वो आयत दे रही थी।
अकल वालिदु वल अबना। इसमें फाइल क्या है? वालिद हैं और उनके बेटे। ये वाव जो है ये कहीं वो वाला तो वाव नहीं है मैम? ये तो आपको पता होना चाहिए ये कौन सा वाला वाव है। निशानी आपको नहीं नजर आ रही? जी जी, मैं एक मिनट अपने नोट्स खोलती हूँ। जी यास्मीन, यास्मीन आप हैं? हाँ हाँ, मेरा 20 जी नंबर आप, था मेरे ख्याल से। जी जी अय्युकुम अहसनु अमला, हाँ, यही है। तर्जुमा करें। आई- जी यास्मीन, यास्मीन आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। जी वासिया। मैम ये मफूल माहू है। जी ये मफूल मा हु है, क्यों? अपने वाओ, बेटों के। और वाओ के बाद जो आपके पास इसम आ रहा है वो क्या है? वो आपके पास मंसूब है। मैं नेट का अगर बहुत इशू चल रहा है मेरे। आ रही जी है मेरी आवाज? जी एक मिनट रुके हैं, वो मैं गौसिया से बात कर रही हूँ। हाँ ठीक है। जी तो वाओ अगर आपके पास अतफ होती, यानी जो और के मीनिंग में इस्तेमाल होती है, हर एक की निशानी है। वाओ अगर और वाली यूज हो रही होती तो ये अबना ऊ होता। वाओ अगर कस्मिया वाली इस्तेमाल हो रही होती तो इसने मजरूर होना था। और ये वाओ जो है यहाँ पे जो इस्तेमाल हो रही है और उसके बाद जो है आपके पास आ रहा है मंसूब इसम। तो वो मंसूब इसम इसीलिए कि ये आपके पास तर्जमा आप इसका करेंगे, वालिद ने लड़कों के साथ या बेटों के साथ खाना खाया या खाया। ठीक है, ये आपने सिर्फ इसमें थोड़ी सी गौर करना होता है और वहां से आपको पता चल जाएगा। जी यास्मीन, जी यास्मीन। हाँ, ये है अय्युकुम अहसनु अमला। जी कौन में से अहसनु ज्यादा अच्छा है अमलन, अमल के लिहाज से, ये अमल में। ठीक है। हफ्जा माइक म्यूट करें। हाँ जी, हाँ सही है। मंसूब इसम। उनमें हाँ से हाँ बिल्कुल कौन सही। है? हाँ जी। अब क्या बताना है इसमें? मंसूब इसम कौन सा है और क्यों है? अच्छा, ये कुम हो जाएगा यहाँ पर, अय्युकुम अहसनु अमला, अमलन। अमलन, अमलन क्यों मंसूब है? ये मैम ये तो में से कौन, तो इसको किस तरह कहेंगे? फिर ये अय्यु कुम हो जाएगा, ये अय्यु हो जाएगा, फिर फेल हो जाएगा, इसको फेल कहेंगे हम। अय्यू जो है वो तो आपके पास हरफे इस्तफहाम होता है। हाँ, अय्युकुम, तुम में से कौन, तुम में से अहसनु कौन। बेहतर है, अमलन अमल के लिहाज से। अमलन। अमलन आपके जी, पास जो है वो मंसूब है, ये मंसूब क्यों है? ये तमीज हो रहा है यहाँ पे ना। जी ये तमीज है इस वजह से। बिल्कुल सही। हाँ जी ये कंप्लीट हो गई आप लोगों की। हाँ 17 रह गया। 17 जो है उसमें है जी यदखुलून अल जन्नता युरज़क़ून फीहा बिगैरि हिसाब। इसका तर्जुमा कौन करेगा? सिर्फ तर्जुमा करना है। तर्जुमा इसका बहुत इजी है। यदखुलून अल जन्नता युरज़क़ून फीहा बिगैरि हिसाब। जी रहीला जी। यदखुलून जन्नत, वो दाखिल होंगे जन्नत में। युरज़क़ून, दिए जाएंगे रिस्क, फीहा उसमें, बगैर हिसाब, बगैर हिसाब के। बिल्कुल सही है। अच्छा जी अब इसमें आपने बताना है, पहले आपके पास ये वाली चीज आ रहा है, सेंटेंस आ रहा है ना। लेट्स सपोज इसको हम दो सेंटेंसेस में अगर डिवाइड कर लेते हैं, यदखुलून अल जन्नता, इसमें कोई इसम मंसूब है तो है जन्ना, आपके पास जो है वो मंसूब है। हाँ जी जन्ना जो है वो क्यों मंसूब है?
जन्ना क्यों मंसूब है? जी हुमैमा। ये जो है ना, ये मफूल बिही है जी। मफूल बिही है, बिल्कुल सही है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो आपके पास अगला जो है ना, युरज़क़ून फीहा बिगैरि हिसाब, ये आपके पास पूरा सेंटेंस बन रहा है। और ये जो सेंटेंस है, इसमें आपके पास जो है वो जाएगा, जो मतलब पूरा सेंटेंस आपका एक किस्म का एक एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम पर जन्नत तो ज़र्फ नहीं है, तो ये मफूल कैसे? जन्नत मकाम है ना, तो मकाम है तो ये मफूल फी ही होगा ना। नहीं, ये मफूल फीही नहीं है, ये मफूल बिही है। मफूल फीही क्या होता है? क्या डेफिनेशन है उसकी? टाइम और जगह बताते किसका टाइम और जगह बताता है? मफूल बिही का। मफूल बिही का टाइम और जगह बताता है। ये कब से हो गया? पीछे से आपको बता कौन रहा है? फेल का वक्त और जगह बताता है कि फेल किस जगह पे हो रहा है और कहाँ हो रहा है। ठीक है। तो ये यदखुलूनल, वो जन्नत में दाखिल होंगे, वो जन्नत में दाखिल होंगे। ठीक है। काम जन्नत के अंदर नहीं हो रहा। ठीक है, जन्नत में वो दाखिल हुए हैं। तो जन्नत जो है वो आपके पास मफूल बिही है, फीही नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, और इसके बाद जो दूसरा जुमला है ना, युरज़क़ून फीहा बिगैरि हिसाब, तो ये जुमला जो है ना, ये आपके पास जो है वो हाल बन रहा है। ठीक है। और इसका जुल हाल जो है वो हम यदखुलूना, यदखुलूना की ज़मीर क्या है जी? यदखुलूना का आपके पास जो है ज़मीर मतलब फाइल क्या है? यदखुलूना का फाइल जो है वो हुम है। ठीक है। तो ये जो आपके पास है ना, युरज़क़ून फीहा, तो दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा? जो जन्नत में दाखिल हो रहे हैं उनको। तो ये आपके पास जो है हुम ज़मीर, उसका जुल हाल होगा, और ये पूरा जुमला जो है ना वो हाल बन के आएगा आपके पास। और ये जो आपके पास जुमला फेलिया जो होता है, जब वो हाल बनता है, तो हमने पीछे देखा था जुमला फेलिया को जब हम इसमिया में चेंज करते थे, तो हम उसकी सिर्फ दो चीजों को जहन में रखते थे, उसकी जिन्स और अदद को। ठीक है ना, बाकी हम कहते थे इराब भी इसके लगे हुए हैं और वो वसत भी इसकी सही है। ठीक है। तो ये आपके पास जो है ना पूरा जो है ये बन रहा है हाल। और किसका हाल है? इनका, जो दाखिल होंगे जन्नत में। ठीक है। ये मैंने इसलिए नहीं दिया था। हाँ जी, आप बताएं जी, कोई चीज पूछनी है कि नहीं? चले, हमारे पास हाल, ये पूरा सेंटेंस हाल। ये पूरा सेंटेंस। ठीक है। जी अभी 70। चूंकि ये हमने ये चीज पढ़ी नहीं है ना, तो पूरा का पूरा सेंटेंस जो है वो हमारे पास हाल में कैसे आएगा, तो इस वजह से कि मैंने फिर आप लोगों को नहीं दिया था। मैम इसमें जो फी हा है तो वो मंसूब नहीं होगा? फी हा, वो वो भी वो मफूल होगा। कैसे मंसूब है? वो कैसे मफूल। मंसूब हो? फी हाँ कैसे है? हा जो है मैम वो मंसूब जमायत में से ना। यार फी क्या है? फी हा फी क्या है? हुरूफ जर है फी। तो फिर हाँ जो है वो मंसूब है। तो मैम हरफ हा जार के मंसूब बाद क्या जमायर आता में है? से। यार हरफ जार के बाद जो है इसम आता है वो क्या होता है? जी मैम वो हम्म, हरफ जार के बाद जो इसम आता है, इसमें इतना सोचने वाली क्या चीज है? मजरूर होता है। तो हाँ इसमें मजरूर। मजरूर है, मंसूब तो नहीं है। ठीक है। मंसूब ठीक कैसे हो जाएगी वो? ठीक ठीक सर मैम। आप लोगों को मुझे लग रहा है पिछले वाले सारे कॉन्सेप्ट जो है ना वो वॉश आउट होते जा रहे हैं। मैम कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग जब नहीं, सारे कंफ्यूज होने वाली कोई चीज ही नहीं है। फी आपके पास हरफ जर है, और हरफ जर के बाद इसम मजरूर आता है, सिंपल। उसमें कंफ्यूज होने वाली क्या चीज है? अच्छा जी, चलें जी। ये एक और वर्कशीट आ गई है, लेक्चर नंबर मिक्स वर्कशीट है। ठीक है जी।
اچھا چلیں یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں پہلے نمبر 2 سے ترجمہ کرنا ہے. انا محمدن لنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نمبر 2 ہے کان الخیل جمیلا جدا. جی اردو والے میں نے نہیں کیے کیونکہ اس پہلا میں والا ہم میں کر لوں گی. جی پہلا والا جی کریں پھر سٹارٹ کریں. بسم اللہ. انا محمدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے. بالکل صحیح. اچھا جی میم اس میں لا نبیون ہے تو لا کا زور نہیں ہوگا؟ ہوں بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً نبی ہیں. اچھا جی نمبر 2 کان الخیل جمیلا جدا. خیل کس کو کہتے ہیں یہ ہم پڑھ چکے ہیں، آپ لوگوں کی اس میں بھی تھا، ووکیبلری میں بھی تھا. جی یاسمین. جی میم. کان الخیل جمیلا جدا. مین اس کا میننگ کیا گھوڑا ہے کیا ہے اس کا؟ بالکل گھوڑا جی ہے نا. ہاں. ہوں گھوڑا بہت زیادہ خوبصورت تھا. گھوڑا بہت خوبصورت تھا. جدن کا مطلب ہوتا ہے بہت، جمیلاً بہت خوبصورت، اور کانا آپ کے پاس آ گیا تو آپ کے پاس اس کی خبر جو ہے وہ چلی جائے گی، منسوب ہو جائے جی. گی. اس میں کانا، اس میں اچھا خیل. اچھا ٹھیک ہے کوئی بتانا مسئلہ ہے اس میں کانا نہیں، ضروری اچھا نہیں ہے، ٹھیک بس صرف ترجمہ کرنا ہے. ہے. اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا جی اس کے بعد ہے کانت حاضی سنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بڑا ایزی سا سینٹینس ہے. جی رحیلہ جی. جی میم میں کروں اس کو. جی جی کانت ہی یہ ہے سنت طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہوں یہ ہے بھی کر سکتے ہیں، یہ تھا بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہی اب کس کے بارے میں، کس چیز کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں جو کہ ان کا طریقہ تھا، تو وہ یونیورسل ٹروتھ کے طور پہ اگر ہم لیں تو پھر ہم اس کا ترجمہ جو ہے وہ ہے بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی سنتا محمد کیا بن رہا ہے؟ سنتا محمد کیا بن رہا ہے؟ جی آیت. میم یہ مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی ہے، بالکل صحیح. اچھا جی اس مرکب اضافی کا غضیہ، اس مرکب اضافی کا اعراب کیا ہے؟ منصوب. منصوب ہے. کہاں سے آپ کو پتہ چلا؟ میم اس کے مضاف سے. اچھا جی اس کے بعد ہمارے پاس آ گیا جی نیکسٹ سینٹینس ہے حل کنتم متصدقون. حل کنتم متصدقون. متصدق کا بھی آپ پڑھ چکے ہیں. جی ام ایمان. کیا تم سب صدقہ کرنے والے ہو؟ بالکل صحیح. کیا تم سب صدقہ کرنے والے ہو؟ اچھا جی اس کے بعد آ گیا کننا صادقین. کننا صادقین. کننا یہ آپ کا کانا کا جا رہا ہے. ٹھیک ہے کون سا سیگا ہے پہچاننا ہے آپ نے، یہ کون سا والا سیگا، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ کانا جو ہے وہ بالکل اس کی فعل کی طرح، اس کی سر نے پوری سنائی بھی تھی اس میں جو اس کی گردان تھی. ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس جو ہے نون الف نا کے ساتھ پھر آپ کو فوراً پتہ چلنا چاہیے یہ کون سا والا سیگا ہے. اور صادقین. جی واسیہ. یقیناً ہم سچ بولنے والے ہیں. یقیناً کس لیے؟ یہ کانا لگاتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے جملہ اسمیہ میں؟ وہ کانا سے. میں یہی تو بتا رہی ہوں کہ یہ کانا کا سیگا لگا ہوا ہے کننا. اننا تو نہیں ہے یہ. ہم ہیں جی ہما سچ جی. ہما جی کنہ ہو آپ نے جائے گا، ہینڈ ریز کیا. کنہ ہو جائے کنہ صادقینہ، ہم دوست ہیں، نہیں ہم دوست تھے.
صادق क्या होगा? सच्चा। हम सच्चे हैं, हम सच्चे हैं। हम सच्चे थे। हाँ सादिक नजीरी थे, सही ठीक है से ना। कुन्ना आ गया अगर सही, मैं हम यहाँ सच्चे से थे कुन्ना बिल्कुल। हटा दे, मतलब काना में हटा रही हूँ ना, काना का हमने कहा था कि जब ये लगेगा तो काना क्या चेंज लाता है, खबर आपके पास जो है वो उसने कर दी, उसमें मंसूब कर दी। मंसूब कर दी, ठीक है ना। तो जी अगर मैं ठीक। इसको ये काना हटाती हूँ तो फिर ये जुमला इसमिया क्या बनेगा? ये जुमला इसमिया है। सादिक जी सादिकीना उसकी खबर है, इसमें इसम फिर क्या होगा? इसम हम क्या लगाएंगे इसमें? पहला जो मुब्तदा है, मुब्तदा इसका क्या होगा? काना मैंने हटा देना है, तो इसका फिर क्या होगा मुब्तदा? इसमें हम लगा देंगे हम। हम किस लिए? नहीं 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 सॉरी, आपके एक पूछिए, सॉरी सवाल नहीं समझ में, आप कुन्या की जगह पे आप कह रही हैं इस जुमला इसमें मैं इसको कह रही बना हूँ कि दें। काना मैंने जी इसमें से रिमूव करना है ना। मैं इसका तर्जमा कर रहे हैं हम कि हम सच्चे थे, मैं इसका तर्जमा नाहनु करना हो चाह जाएगा, रही फिर हूँ हम सच्चे ही नाहनु हो नहीं। जाएगा, हाँ, नाहनु हो जाएगा, नाहनु हो जाएगा इसमें। नाहनु, हाँ बिल्कुल सही, नाहनु सादी, और खबर सादिकून। सादिकूना, नाहनु जी सादिकूना। जब नाहनु जी के साथ हमने काना लगाया ना, तो फिर जैसा कि हमने बताया था कि फेल है, तो फेल है तो फिर इसका वो चौथा सीगा लगेगा, तो हम फिर वो उसको हटा देंगे। ये नहीं है कि अब डबल डबल हम चीजें लगाना शुरू कर दें, कुन्ना भी सही। लगाएं और नाहनु भी लगाएं, तो वो सिंपल ही आपका फिर इस तरह जो है वो बनेगा, ठीक है। अच्छा जी, टाइम हमारा एंड होने वाला है। बात मैंने ये करनी थी कि आप लोग कोशिश किया करें कि जैसे ही क्लास हो तो विद इन 2-3 मिनट्स जो है वो आप आ जाया करें, क्योंकि फिर बाद में इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि मेरी अगली क्लास होती है। ये वाली जो वर्कशीट अभी हमने स्टार्ट की है, ये भी मैं आपके ग्रुप में भेज रही हूँ, अगर आपको टाइम मिली तो देख लीजिएगा, वरना इसमें इजी है चीजें, और फिर हम इसको जो है वो आगे इंशाल्लाह करेंगे, ठीक है जी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।